हेलो बच्चों, वेलकम टू माय येट अनदर क्लास ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं इन दिस क्लास? वी आर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस इज माय सेकंड क्लास ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट? सो टुडे बच्चों वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टीज एंड टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे, द प्रॉपर्टी दैट यू आर गोइंग टू रीड टुडे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है? एंड यूजिंग दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स ऑफ जेई जस्ट लाइक दैट। बढ़े आगे, चलो कम ऑन, लेट्स मूव अहेड। दिस इज द शेड्यूल बच्चों which I am going to follow. My first class happened on 19th August. It was the introduction class of integration. Today we are going to learn properties. One more class on properties, then we'll have a class on Newton-Leibniz theorem and summation of integration, and my last class on 28th August is going to be most important, because in that class we are going to learn all JEE Mains and Advanced level problem solving, and you will realize like always कि अरे ये तो ऐसे ही हो जाता है, it's so simple to do integration, है ना? And a brief introduction about me बच्चों, ones who are new, I am Pulkit. I've done my BTech from IIT Roorkee. After that I started two companies. One is Laksh Institute, where we have produced many top ranks in the country and taught tens of thousands of students. And then I started Vedantu, so that using technology, we can take education to all the students out there in the country. And इसीलिए that's the reason why I'm also taking classes on YouTube, ताकि आप सब बच्चे YouTube पे पढ़ पाओ, है ना? And with that mission, help us in our mission in spreading education बच्चों. Do share with your friends who you think can benefit from Vedantu classes. तो share जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ, and do subscribe अगर आपने नहीं किया है तो by pressing on the bell icon as well, so that you get notifications. By the way, in parallel KVPY classes are also going on. I hope आप attend कर रहे हो KVPY की classes. जरूर से करना, okay? Very important. आपका level enhancement होता जाएगा, कुछ नहीं तो आ जाओ। Today we are going to solve problems like these बच्चों. These are the JEE problems which I am going to take today. So problems like these using properties. Today we are going to solve problems through properties, right? And problems like these, if you are watching it as a replay, do give your answers in the comment box if you know how to solve them. ठीक है? Pause करके आप इसको दे सकते हो आंसर comment box में. If you are watching live, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड प्रॉब्लम्स लाइक दीज, एंड यू विल रियलाइज दीज आर वेरी वेरी सिंपल वर्बल प्रॉब्लम्स इफ यू हैव लर्न द प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो आ जाते हैं। सो दिस वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, द ब्रेकअप ऑफ द इंटीग्रेशन, इसका वेटेज जेई में कितना है ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो आई एम मूविंग अहेड फ्रॉम हियर, एंड ऑल द डिस्कशंस आर हैपनिंग ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसका लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन. After the class PDF gets shared in the Telegram group, and the assignment will also get shared here, ठीक है? And everything is also getting shared on Vedantu app. तो Vedantu app के ऊपर जाओगे तो आपको आज तक के सारे पुराने assignments जो भी शेयर किए हैं या PDF सब मिल जाएगा. You can get it on the Vedantu app as well, so you can download it. And आ जाओ. Now let's learn integration properties. बच्चों, if you remember in the last class what I did, I ended my last class with what बच्चों? With a basic understanding of this. हमने क्या किया था? हमने एक ग्राफ बताया था, मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था बना के. Say a graph like this. Imagine there is a graph like this, right? And imagine this is the x-axis, right? अब ये कुछ points ले लेता हूं मैं. So this is A, this is B, this is C, and this is D, right? हमने क्या किया था? मैंने आपको बोला था अगर मैं इसका एरिया बताऊं आपको, तो मान लो इसका एरिया कितना है? मान लो इसका एरिया है A1. मान लो दिस एरिया इज से कितना ले ले? 2 ले ले. से दिस A1 इज 2, दिस एरिया, राइट? मान लो ये वाला एरिया है A2. मान लो A2 है कितना? थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लो 1. अज्यूम, आई एम जस्ट टेकिंग रफली. मान लो A2 इज 1, right? And मान लो you have this is A3. मान लो A3 is 3,
राइट तो हमने इंटीग्रेशन का मतलब समझा था. इफ द कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स, देन व्हाट डिड वी लर्न बच्चों? वी लर्न दैट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बिटवीन द लिमिट्स a से लेके d कैन ऑलवेज बी रिटन बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर इंटरवल्स. आपको a से लेके d तक अगर इंटीग्रेट करना है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो. यू कैन ब्रेक इट एज इंटीग्रल. सबसे पहले आई कैन गो फ्रॉम a to b f x dx, then we can go from b to c f x dx, and then we can go from c to d f x dx. This is what we learned. We also learned that how integration is related with area, right? तो हमने क्या समझा था बच्चों? How integration is related with area. ये कितना हो जाएगा? a to b f x dx बच्चों कितना हो जाएगा? It will be equal to the area. It is equal to the area. If the graph is above x-axis, integration is same as area. This is what we learned in the last class. तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? This is actually what? This is a1. या फिर आप बोल सकते हो this is equal to 2. So this is 2, right? What is this one? b to c. b to c, the graph is below x-axis. If the graph is below x-axis, then integration is equal to negative of the area. अगर इसका एरिया है 1 यूनिट, इसका एरिया बच्चों कितना है? 1 यूनिट, देन द इंटीग्रेशन बिटवीन b to c कितना हो जाएगा? इट विल बी नेगेटिव ऑफ दैट एरिया. सो एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ a2, या फिर दिस इज गोइंग टू बी -1, है ना? तो ये कितना हो गया? 2, दिस इज -1, और थर्ड क्या है? दिस इज अबव एक्स एक्सिस, सो इट इज पॉजिटिव. तो यहां से क्या आ जाएगा? दिस विल बी एक्चुअली a3 which is equal to 3. So आपका नेट आंसर कितना हो गया बच्चों? 2 minus 1, 2 minus 1 that is 1, 1 plus 3 that is 4. So net answer is 4. So आपने दो चीजें सीखी यहाँ पे. You actually learnt a property. What is the property? That you can break the integration into smaller intervals as per the requirement. कब करेंगे? अभी examples के through we will study that, right? And you also learnt that how integration is linked with the area under the graph. If the graph is above x-axis, integration is equal to the area. If graph is below x-axis, integration is negative of the area. ठीक है? Cool? तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था. इट वॉज अ क्विक रिविजन. अच्छा, अगर आपको एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए, इफ somebody asks you what is the area under the graph, this is actually the next chapter. ये नेक्स्ट चैप्टर है. दिस इज व्हाट विल डू इन द एरिया अंडर द ग्राफ वाला चैप्टर. बट स्टिल अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, व्हाट इज एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू e. ये x इज इक्वल टू a है, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d एंड दिस इज e, राइट? अगर कोई आपसे एरिया पूछेगा बच्चों, तो एरिया क्या हो जाएगा? दिस इज द ग्राफ. अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? नाउ व्हाट आई वांट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. मतलब मुझे चाहिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, है ना? अब ये इंटीग्रेशन के बराबर नहीं होगा बच्चों. विल इट बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन? नो, बिकॉज इंटीग्रेशन कैन गिव पॉजिटिव वैल्यू इफ द ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस. इंटीग्रेशन गिव्स द नेगेटिव वैल्यू इफ द ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस. अगर एरिया चाहिए ना बच्चों, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न दैट एरिया इज एक्चुअली नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ, मतलब इंटीग्रेट करते जाओ और उसकी पॉजिटिव 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 वैल्यू लेते जाओ. बस मतलब यहां पे इंटीग्रेशन करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, टेक अ मॉड, मेक इट पॉजिटिव. बी टू सी इंटीग्रेशन करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी टू डी इंटीग्रेट करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी. इफ आई इंटीग्रेट बिटवीन सी टू डी आई गेट अ नेगेटिव वैल्यू, टेक अ मॉड, मेक इट पॉजिटिव. गो फ्रॉम डी टू ई, इंटीग्रेट बिटवीन डी टू ई. If you integrate, you will anyways get a positive value, no problem. So to find the area bounded by the graph, which we are going to do in the next chapter, we will actually take the modulus of the integration. But in general, integration is not equal to area. Integration is equal to the area if the graph is above x-axis. Integration is negative of the area bounded by the curve if the graph is below x-axis.
We will do it again in the chapter of area under the graph, but this understanding was important as we go ahead. इसीलिए मैंने आपको अभी करा दिया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे. एक्चुअली हम प्रॉपर्टीज ही कर रहे थे. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज बच्चों. प्रॉपर्टी 1 वेरी सिंपल. देखो वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो व्हाट इट सेज, इफ यू इंटीग्रेट बिटवीन a to b fx dx या a to b ft dt, इट डज नॉट मैटर. क्या फर्क पड़ता है? बहुत सिंपल है. मतलब नाम में कोई फर्क नहीं है. मतलब मान लो कि इंटीग्रल fx, मान लो इंटीग्रल fx dx क्या है? कैपिटल fx. मान लो ये है, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? दिस विल बी कैपिटल fx अंडर द लिमिट्स a to b. और बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इफ इंटीग्रल fx dx इज कैपिटल fx, इंटीग्रल ft dt कितना हो जाएगा? भाई वेरिएबल का नाम ही तो चेंज हुआ है. इट विल सिंपली बिकम, बट व्हेन यू पुट द लिमिट्स, इसका आंसर ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी f ऑफ b माइनस f ऑफ a. और इसके अंदर भी जब आप पुट कर दोगे लिमिट, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो जाएगा. सो द नेम ऑफ द वेरिएबल डज नॉट मैटर. कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलता हूं इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम सम वैल्यू से 0 से पाए, या फिर मैं बोलता हूं 0 से लेके पाए साइन टी डी टी, both are actually saying the same thing. So don't get confused by the name of the variable. ठीक, this is an obvious property, but बच्चे इसमें confuse हो जाते हैं. ठीक है? So we will keep focusing on it as we go ahead and solve the problems. So don't get confused on these, right? Let's see the second property. As long as the interval of the integration is same, the variable name does not matter. Same thing, right? Property 2. अगर a to b इंटीग्रेट करना है, राइट? और अगर आप बच्चों क्या करो, इफ यू इंटरचेंज द लिमिट्स, अ माइनस साइन विल कम आउट. प्रिटी ऑब्वियस. ठीक है? अगर a to b fx dx करो, अगर आपको b to a, अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं, अ माइनस साइन विल कम आउटसाइड. अगेन इट इज वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड. क्योंकि बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कैपिटल fx a to b, राइट? और अगर इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों, तो क्या आएगा? कैपिटल fx फ्रॉम b to a, राइट? तो ये हो जाएगा fb माइनस fa, ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ b. बट दोनों को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स द रीजन व्हाई. So if you interchange the limits, a minus sign comes outside. Very simple to keep in mind. ठीक है? Nothing special here. And the third property is that you can break the integration anywhere. You can break A से B तक जाना है तो आप A से C तक चले जाओ, फिर C से B तक आ जाओ, और C कहीं भी लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not matter where the C lies. ठीक है? क्योंकि ये क्या है? FC माइनस कैपिटल FC माइनस कैपिटल FA, कैपिटल FB माइनस कैपिटल FC, FC कैंसिल हो जाएगा. सो C कहीं भी लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इन जनरल आप A से B के इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हो इन द इंटरवल्स. ठीक है? और ये कब करेंगे? व्हेन विल यू ब्रेक द इंटीग्रल इन द इंटरवल्स? दैट वी विल सी व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. सो लेट अस नाउ लर्न व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. प्रीटी सिंपल प्रॉपर्टीज. आ जाओ. अवर प्रॉब्लम नंबर 1. So we have to integrate 0 से 2 mod of 1 minus x dx. Remember बच्चों, whenever you get a problem in which there is a modulus or a fractional part or a greatest integer function, modulus, fractional part और greatest integer function, then आपको function को break करना पड़ता है. Why? Because the function changes its value under different intervals. जैसे आप सबको पता है, all of you know that mod of x behaves like x अगर x पॉजिटिव है, but it behaves like minus x अगर x नेगेटिव है. Everybody knows this. Everybody knows this. ठीक है? Modulus opens with a positive sign if whatever is written inside the mod is positive. Modulus opens with a negative sign if whatever that is written inside the mod is negative. तो
इसको सॉल्व करने के लिए मुझे मॉड्यूलस को ओपन करना पड़ेगा, बट मुझे पहले समझना पड़ेगा हाउ शुड आई ओपन द मॉड्यूलस. सो लेट अस चेक. सो व्हाट डू वी डू बच्चों? सो वी विल चेक फर्स्ट. अरे हो जा. हाँ, सो वी विल चेक व्हेन इज दिस नेगेटिव एंड व्हेन इज दिस पॉजिटिव. चेक करें. मैं चेक कर रहा हूं कि 1 माइनस एक्स बच्चों पॉजिटिव कब है? व्हेन. सो व्हेन इज फॉर व्हाट इंटरवल इज 1 माइनस एक्स पॉजिटिव? आप इजीली देख सकते हो. व्हेन एक्स इज लेस देन 1. सो व्हेन एक्स इज लेस देन 1, 1 माइनस एक्स इज पॉजिटिव. सो बेसिकली 1 माइनस एक्स की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 माइनस एक्स. सो 1 माइनस एक्स बच्चों कब पॉजिटिव है? एक्स ये 1 है, दिस इज 1. 1 के पीछे इट इज पॉजिटिव एंड 1 के बाद इट इज नेगेटिव. एग्री? इज दैट क्लियर? सो ऑब्वियसली अब मैं क्या करूंगा, आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. मैं पहले जाऊंगा कहां तक बच्चों? फर्स्ट आई विल गो फ्रॉम 0 to 1 एंड देन 1 से लेके 2, बिकॉज माई इंटरवल क्या था बच्चों? 0 से लेके 2. बट आई रियलाइज इन बिटवीन 0 से 2 देयर कम्स अ पॉइंट 1 जिसके ऊपर वेयर 1 माइनस एक्स इज चेंजिंग इट्स साइन. बिफोर 1 minus x was positive, as you can see here. 1 minus x is positive for x is less than 1. So between 0 to 1, 1 minus x का mod will behave like, ठीक है? So 1 minus x का mod will behave like between 0 to 1, 1 minus x. Agree? क्यों? Because 1 minus x is positive. Because 1 minus x is positive. But modulus of 1 minus x will behave like minus of 1 minus x between 1 से 2. Why? Because 1 minus x is negative. ये तो सबको क्लियर है ना? सो यहां पे बच्चों क्या था? यहां पे ये नेगेटिव था और यहां पे ये पॉजिटिव था. सो ओपन्स विद अ पॉजिटिव साइन, ओपन्स विद अ नेगेटिव साइन. तो आपका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा बच्चों? आई विल इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 1 and I will integrate then between 1 से लेके 2. But between 0 to 1, modulus of 1 minus x will behave like 1 minus x. So it simply behaves like 1 minus x. Between 1 से 2, modulus of 1 minus x behaves like minus of 1 minus x. बस रेस्ट इज सिंपल टू इंटीग्रेट. इसमें क्या है? ये तो सब कर ही लोगे. ये कितना हो जाएगा? दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट्स 0 to 1. माइनस साइन को बाहर लेना है तो बाहर ले लो, ठीक है? या फिर इसको लिख लो x माइनस 1. यू कैन राइट दिस इज x माइनस 1. सो प्लस x माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स अंडर द लिमिट्स 1 से 2. सॉल्व टू गेट द आंसर. क्लियर? एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? यस और नो? जल्दी बताओ मुझे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है. आई टुक टाइम टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 कॉमन कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू whenever you see a modulus बच्चों in a problem. First see whatever that is written inside the modulus, वो कहां पे पॉजिटिव है, where is it positive, where is it negative. Based on that, break the integration accordingly in such a way where whatever was written inside the mod, where it was positive, open the mod, write the function with a positive sign. Wherever whatever was written inside the mod, where it was negative, open the mod, write it with a minus sign and then go ahead and integrate. ठीक? So this is, so इसका calculation check कर लेते हैं. The calculation will give you the answer this. I have solved it for you. So 1 minus x का mod opens with a positive sign. 1 minus x when x lies between 0 to 1. Between 1 से 2, this opens with a negative sign, becomes x minus 1. ठीक है? So अपन ने इंटीग्रेट किया. सेम थिंग आंसर आ गया. ठीक है? कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों. आंसर आएगा 1. आंसर इज 1. कूल? गॉट इट? अच्छा, अगर ऑप्शंस होते, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता,
Could this ever have a negative answer? No. Modulus function is always above x-axis. Modulus is always positive. Modulus is always positive. So modulus function का integration कभी negative तो हो ही नहीं सकता. Because for a graph which is above x-axis, answer is always positive. Small things which will help you as a shortcut trick, which we will learn as we go ahead. ठीक है? Anyways, do this. JEE 2004, solve it. Again, same problem, modulus वाला. I want you to do it yourself. करो. सबसे पहला स्टेप बच्चों, आपको चेक करना है ये मॉडुलस कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव साइन से ओपन होगा. डू इट. मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताओ कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है. फर्स्ट स्टेप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर इज इट पॉजिटिव, वेयर इज इट नेगेटिव. क्या करोगे आप? यू वॉन्ट टू चेक दिस. 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये कहां पे पॉजिटिव है भाई? चेक करें. तो दिस थिंग, वॉट एवर दैट इज रिटन इन साइड द मॉड, वेयर इज इट पॉजिटिव? चेक कर लेते हैं. दिस इंप्लाइज कि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख लेता हूं उल्टा करके, और आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस साइन, इनइक्वालिटी चेंजेस, सबको पता ही है. ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. वेवी कर्व अपन बहुत बार, हजारों बार कर चुके वेवी कर्व बाय नाउ. दिस विल गिव यू व्हाट? बिटवीन -1 एंड 1 प्लस माइनस प्लस. एग्री? वेवी कर्व किया है अपन ने कई बार. तो दिस इंप्लाइज फॉर लेस देन 0, मतलब इस चीज के लिए दिस कितना हो जाएगा? सो x बिलोंग्स टू -1 से 1. So when x belongs to -1 से 1, this thing is positive. बच्चों ये कब पॉजिटिव है? -1 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है, उसके अलावा हर जगह इट इज नेगेटिव. समझ में आया? तो क्या आ गया आपके दिमाग में? -1 से 1 के बीच में this modulus will open as 1 minus x square with positive sign. Agree? But इधर और इधर क्या हो जाएगा? When you go here और when you go here, 1 के आगे और -1 के पीछे, this will open with a minus sign. It will open with a minus sign. Right? It will open with a minus sign here also. सबको समझ में आया? समझ में आया? क्या किया हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन चेक किया. 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब है? सॉल्व किया -1 से 1 के बीच में. इन बिटवीन -1 to 1 दिस थिंग इज पॉजिटिव. बिटवीन -1 to 1 दिस मॉडुलस ओपन्स विद अ पॉजिटिव साइन. ऐसे कैसे आ जाएगा? बट बियॉन्ड 1 एंड बिफोर -1 दिस मॉडुलस विल ओपन विद अ माइनस साइन. यहां तक क्लियर? नाउ लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व इट. सो इसको सॉल्व करते हैं. तो क्या हो जाएगा? योर फंक्शन विल, आंसर इसका देख लो, इसका आंसर आएगा 28/3. आंसर इज ए. यू विल ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स नाउ. कैसे ब्रेक करोगे बच्चों? मुझे जाना है -2 से कहां तक? 3 तक. इन बिटवीन कम्स -1, इन बिटवीन कम्स 1. राइट? सो फर्स्ट यू विल गो फ्रॉम -2 से -1. फर्स्ट वी विल गो फ्रॉम -2 से -1. बच्चों बताओ यहां पे ये क्या है? साइन बताना मुझे सब. इसका साइन, वी आर लुकिंग एट दिस साइन हियर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना था बच्चों? यहां पे था पॉजिटिव, यहां पे था नेगेटिव और यहां पे था नेगेटिव. सो वेर एवर दिस थिंग, वॉट एवर रिटर्न इन साइड द मॉड इज नेगेटिव, द मॉडुलस विल ओपन विद अ माइनस साइन. सो माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, now I will go from -2 से -1. now -1 से 1, -1 से 1, this thing was positive, the modulus will open with a positive sign. So simply 1 minus x square as it is, plus now I will go from 1 से लेके 3. now I will go from 1 से लेके 3. so 1 से लेके 3, वो again will open with a minus sign.
बस सॉल्व कर लेना, नीचे कैलकुलेशन है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, दिस कम्स हियर, राइट, कैलकुलेशन यहां पे, दिस थिंग इज ये रहा एंड दिस थिंग इज ये रहा, सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस बिटवीन -2 से -1, दिस बिटवीन -1 से 1, दिस बिटवीन 1 से 3, आंसर इज 28/3। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, यस की नो बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो डू प्रेस ऑन द लाइक बटन सो दैट आई गेट द फीडबैक। अगेन very very basic problem, but I'm doing it slow, devoting time to it, because I know अगर ये concept आपको समझ में आ गया, if this concept is clear to you, then you can never get stuck in definite integration की problems. It is just simply about looking at the zones where the function breaks and behaves differently. बस ये सीखना है आपको यहाँ पे। And similarly we can do a problem like this, ये देखो, फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो ब्रेक्स, चलो ये देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 फ्रैक्शनल पार्ट x dx, कैसे बिहेव करता है फ्रैक्शनल पार्ट, याद है? भूल गए? याद कराऊं? अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट भूल गए तो लेट मी हेल्प यू रिमेंबर इट। व्हाट वाज फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट वाज x minus greatest integer function of x. We can do it in so many different ways. X minus greatest integer function of x, which told us that fractional part of x behaves differently in different zones. Fractional part of x, ठीक है, ये भाई अपना कैसे बिहेव करता है? ये बिहेव करता है एज बिटवीन, चले किसके बीच में? चलते हैं अपन से 1 से 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 के बीच, जब x 0 से 1 के बीच में होगा बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0 to 1, 0 होता है, हाँ। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द इंटीजर जस्ट बिफोर दैट। 0.1 से पहले इंटीजर कौन सा है? ग्रेटेस्ट, 0, राइट। इसे हम कर चुके हैं, यू हैव डन दिस अ लॉट इन फंक्शंस का चैप्टर, एंटायर 1 क्लास वाज डिवोटेड टू इट। यस, सो कितना हो जाएगा? x minus 0 is simply x बिटवीन 1 से 2, 1 से 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे देखते थे आप? 0, 1, 2, एनी नंबर बिटवीन 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बच्चों? 0। एनी नंबर बिटवीन 1 से 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बच्चों? 1। एनी नंबर बिटवीन -1 to 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, राइट। सिमिलरली, सो 1 से 2 के बीच में कितना होता है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? x minus 1, ठीक है। बिटवीन -1 से 0, बिटवीन -1 से 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, सो व्हेन आई पुट -1 हियर, ये कितना हो जाएगा? एंड सो ऑन। So this is how fractional part of x behave. Now you can solve this problem in multiple ways. One way to solve this is, ब्रेक करो पहले तो इसको, 0 से 2 तक जा रहा हूं, I know the function behaves differently between 0 to 1 and behaves differently between 1 से 2, तो चलो कर देते हैं, ब्रेक कर देता हूं इसको। मैं जाता हूं 0 से 1 तक। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे बिहेव कर रहा है? 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x behaves like x. So this simply becomes x dx plus between now 0 to 1, 1 से 2, 1 से 2, right? From 1 से 2, 1 से 2 के बीच में it behaves like x minus 1. So fractional part of x behave like, बस now you can integrate. कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन बच्चों? This is x square by 2 under the limits 0 to 1, you can solve, plus ये कितना हो जाएगा बच्चों? x square by 2 minus x under the limits 1 से 2, कर लोगे सॉल्व? बट यू कुड हैव ऑल्सो डन इट ग्राफिकली एज वेल, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हैव सॉल्व्ड इट कैसे? ग्राफिकली। मैं कैसे करता इसको? यहां तक समझ में आ गया? नाउ सी,
द ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम वुड हैव बीन, मैं फ्रैक्शनल पार्ट, एक्स का ग्राफ याद आता मेरे को, मुझे याद है ग्राफ कैसा होता है इसका, इट्स ग्राफ इज लाइक दिस, कहां गया ये रहा, हो गया। सो बिटवीन 0 to 1 द ग्राफ्स बिहेव लाइक एक्स, ये हमने किया है इन द चैप्टर ऑफ फंक्शंस, इफ यू रिमेंबर वी डिड इट इन द चैप्टर ऑफ फंक्शंस। नाउ बिटवीन 1 से 2 दिस इज द ग्राफ x minus 1, between 2 से 3 x minus 2, between -1 से 0 x plus 1 and so on. This is the graph of, किसका ग्राफ है बच्चों ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। Now what is the question? क्वेश्चन क्या है, ये कितना होता है, this is 1, this is 1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन बिटवीन 0 से 2, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ इफ द ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस। अरे एरिया अंडर द ग्राफ देख सकता हूं डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, एक्चुअली द क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज सेम एज सेइंग मुझे 0 से 2 के बीच में ये एरिया चाहिए, बस ये आपका आंसर है। कैन यू डायरेक्टली राइट द आंसर, ये कितना हो जाएगा एरिया, ये कितना है 1, ये कितना है 1, इसका एरिया बच्चों कितना हो गया, हाफ इंटू 1 इंटू 1, और इसका एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू 1 इंटू 1, ऐड कर दो, हाफ प्लस हाफ, आंसर इज 1। सो सिंपल। सो ऐसे विद टाइम यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस। मैंने क्या बोला बच्चों, पहली चीज आपको ग्राफ आना चाहिए। सो अब आप समझ रहे हो क्यों ग्राफ 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 बोल रहा हूं मैं, इतने इतने चैप्टर से, इन एवरी चैप्टर आई एम शाउटिंग ग्राफ ग्राफ ग्राफ, because if you start thinking graphically the problems become just like that। definite integration तो पूरा graphically कर सकते हो आप if you are graphically strong, right? so मैंने क्या किया, मैंने fractional part of x से ग्राफ को विजुअलाइज किया, मुझे आता था, मैंने देखा 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो क्या प्रॉब्लम है, ग्राफ इज ऑलवेज अबव x एक्सिस, सो इंटीग्रेशन इज सेम एज एरिया। 0 से 2 के बीच में एरिया अंडर द ग्राफ कितना हो जाएगा, ये शेडेड पोर्शन, ये क्या है, ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल का एरिया निकालने में क्या देर लगती है, हाफ, ये कितना है 1 1, एरिया इज हाफ इंटू 1 इंटू 1 विच इज हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, 1 इज योर आंसर। आप इसको भी सॉल्व करके देख लो, 1 आएगा। क्लियर, आगे बढ़े, आई होप दिस इज क्लियर। सो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम अगेन हियर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। same thing that I wrote here। so integration 0 से 1 x, 1 से 2 x minus 1, इंटीग्रेट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ प्लस हाफ 1। कूल, दैट्स योर आंसर। चलो लेट्स मूव अहेड। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ये है भगवान प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज द गॉड प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट वी कॉल एज in many places you also learn that as king's property. This is like the god property because it is used so much. It is this property is the property through which 99% of your problems of JEE of definite integration will be solved, right? So that is why कभी कभी हम इसको प्यार से बच्चों बोल देते हैं with love. With love we call this as king's rule और किंग्स प्रॉपर्टी, बट विथ लव, प्यार मोहब्बत से, ठीक है। कोई ये, दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल नेम ऑफ इट, ऑलराइट, ठीक। एनीवेज चलो, सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज। करूं, तो ये आया कहां से, क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, a to b f(x) dx, if the integration is between a to b f of x dx, then if you integrate a to b f of a plus b minus x dx, the integration will not change. This and this are same integration and it's very simple, ठीक है। एक्चुअली आया कैसे, ये आया कैसे होगा बताओ, ये ऐसे आया होगा बच्चों। लेट मी जस्ट टेल यू हाउ इट केम। सो अपन क्या करते हैं, टू बिगिन विथ, लेट मी डू, अच्छा मैंने बंद ही कर दिया। सो लेट अस बिगिन बाय सेइंग, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। मैं क्या करता हूं, मुझे a प्लस बी माइनस एक्स है ना, मुझे लेके जाना है टिल एफ ऑफ एक्स। एक काम करता हूं, मैं a प्लस बी माइनस एक्स को t बोल देता हूं,
substitution. What I'm doing here, I'm doing a substitution here. I'm substituting a plus b minus x with t. उससे क्या होगा बच्चों, मेरे पास dx कितना हो जाएगा? If I differentiate this side, a का differentiation 0 constant है, b का differentiation 0, x का differential minus x का dx with a minus sign dt. तो बच्चों मेरे पास कितना आ गया? dx is equal to minus dt. एक तो ये आ गया मेरे पास, राइट? सो मेरा इंटीग्रल किसमें चेंज हो जाएगा? व्हाट विल माय इंटीग्रल चेंज इनटू? माय दिस इंटीग्रल will change into using this integration of f of t dt, but there is a minus sign. dx बन गया minus dt, dt बन गया f of t, but the limits will change. Don't forget the limits बच्चों. मैंने last time क्या बताया था? In substitution limits changes. So how will the limit change? How will the limit change बच्चों? यहां पे limits किसकी है? This a and b. They are the limits of x because you are integrating with respect to x, right? So this is actually, think in your mind as ये x1 है और ये x2 है. आपके दिमाग में ऐसे सोचना है आपको कि dx के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं तो यू आर इंटीग्रेटिंग बिटवीन x1 से x2, बट यहां पे लिमिट्स किसकी आएगी बच्चों? यहां लिमिट्स आएंगी आपकी t1. आपके पास लिमिट्स आएगी किसकी? t की, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. अब t1 t2 कैसे आएगा? बहुत सिंपल है. जब x1 a है था, when x1 was a implies t1 कितना हो जाएगा? when the lower limit with respect to x was a, when x is a, पुट करो, when x is a, what is t? t comes out to be b. तो आपकी लोअर लिमिट क्या हो गई? जब x1 a था तो आपकी t की लिमिट कितनी हो जाएगी? दिस विल बी b. सिमिलरली जब आपकी अपर लिमिट थी बच्चों कितनी? b, तो आपकी t2 कितना हो जाएगा? a. यू कैन चेक, पुट x की जगह b, आपका a हो जाएगा. तो बच्चों क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया माइनस एफ टी डी टी फ्रॉम b to a. बट आई नो इफ आई कंज्यूम द माइनस साइन द लिमिट्स विल चेंज. यस की नो? when I take this minus sign or consume it minus sign, और when I interchange the limit, एक और माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सिंपल वर्ड्स. अभी क्या था हमने प्रॉपर्टी में? सो कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज, कैन आई राइट दिस एज इंटीग्रेशन बच्चों क्या? a to b एफ टी डी टी. यस की नो? ये था b से a, माइनस साइन को खा गया, a to b हो गया, बट बोथ आर सेम. बोथ आर सेम. क्यों सेम है? मैंने आपको बताया था नाम से क्या फर्क पड़ता है. एफ टी डी टी का इंटीग्रल कर लो या एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कर लो, इफ द लिमिट्स आर सेम द इंटीग्रेशन इज सेम. सो हो गया प्रूफ. हो गया प्रूफ. यस कि नो? सो ये और ये क्या आ गए आपके पास? सेम आ गए. बस दिस इज व्हाट वी कॉल एज द किंग्स रूल या किंग्स प्रॉपर्टी. ठीक है? सिंपल वर्ड्स. अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स करना है तो उसका जो आंसर होगा वो सेम होगा as if you integrate under the same limits a to b by replacing x by a plus b minus x. अब इसको यूज कैसे करना है चलो अब देखते हैं. Let us learn how to use it. ये सेम प्रूफ मैंने कर रखा है, स्किप करते हैं. Now let's try to learn the application in this problem. Be very very careful बच्चों. Okay, now we'll learn very very carefully this integration. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज आई. हमेशा याद रखो whenever you start an integration in your mind think कि whatever the question is it is ये I. This is the value of the integration is I. I is 0 to pi. क्या है? 0 से लेके पाई x sin x upon 1 plus cos square x. x sin x upon 1 plus cos square x. Now let us apply the King's property and see what will happen. First of all, I cannot solve it by substitution. क्यों? मैं cos x को t पुट करता तो sin x dx dt हो जाता, बट ये x परेशान कर रहा है. This x is troubling me. So King's property or that King's rule is going to help us remove this गंदा x. ये जो घटिया सा x है ना जो मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, इसको हटाने में हेल्प करेगा कौन? किंग, भगवान. कैसे? We will again rewrite I.
I will again rewrite I, but now using King's property. मैं क्या करूंगा, ये है मेरा f of x, this is my f of x, ठीक है, this is my a and this is my b, ठीक. Now I know that integral fx dx between a to b is same as integral a to b f of a plus b minus x dx. ये थी प्रॉपर्टी. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिप्लेस x by a plus b minus x. जो भी आएगा वो भी वापस से i होगा, बिकॉज द इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन इज सेम एज दिस इंटीग्रेशन. तो अगर ये i है तो अपना ये वाला भाई भी i होगा. इफ दिस इज i देन दिस भाई इज ऑल्सो i, राइट. सो i कितना हो जाएगा, लेट अस ट्राई टू राइट. कैन आई राइट i इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b, that is same 0 to pi. जहां जहां x दिख रहा है ना बच्चों, wherever you are seeing x, जहां जहां x दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो किससे बच्चों, a plus b minus x से. This is not substitution, this is applying the property. Don't confuse this with substitution. ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है. सब्स्टिट्यूशन को यूज करके प्रॉपर्टी डिराइव की अपन ने, रिमेंबर, ठीक है. सो सिंपली रिप्लेस x बाय a प्लस b माइनस एक्स. तो x की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, व्हाट इज a प्लस b, 0 प्लस पाई. व्हाट इज a प्लस b हियर, a प्लस b इज पाई. सो a प्लस b माइनस एक्स बच्चों क्या है, पाई माइनस एक्स. सो रिप्लेस x बाय पाई माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स. अरे वाह, अपने को पता है पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव. सब ट्रिग्नोमेट्री है ये. सो वी नो 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, बट देयर इज अ स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है. इट विल बिकम अगेन 1 प्लस. एग्री. क्या किया हमने किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई की. किंग्स प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों, जो भी x है उसको रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स से. इंटीग्रेशन डज नॉट चेंज. ओरिजिनल इंटीग्रेशन i, आफ्टर अप्लाइंग किंग्स रूल अगेन द इंटीग्रेशन इज i, ठीक है. अब दोनों को ऐड कर दो. नाउ द स्टैंडर्ड थिंग इज, एज यू ऑल आर सेइंग इन द कमेंट बॉक्स, क्या करेंगे बच्चों, इसको और इसको उठा के ऐड कर देंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड इज i, सो दिस i एंड दिस i विल गेट एडेड, हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन, ये और ये ऐड हो जाएगा. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो बच्चों कॉमन आ जाएगा, ठीक है. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉमन आ जाएगा, है ना. साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉमन. बचेगा कितना, एक्स प्लस ये बचेगा. क्या हो गया, लो ये घटिया सा x तो कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है. क्या हो गया बच्चों, दिस x गेट्स कैंसल्ड आउट. बस यही तो हमें चाहिए था. तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, देयर इज अ पाई विच इज कांस्टेंट, विल कम आउटसाइड, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. तो सबको सॉल्व करना आता है. पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू t. समझ में आया बच्चों. लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन फॉर यू. क्या किया हमने, किंग्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे. दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, rewrite the original question but by applying the King's rule. How do you apply the King's rule? Replace x by a plus b minus x. a plus b is pi, a plus b minus x is pi minus x. जहां जहां x है I will replace that by pi minus x. ठीक, I will do what? ये आ गया, sin pi minus x is sin x, cos pi minus x is minus cos x, but because there is a square it becomes cos square x. Now I will add the original I with this I will add this and this,
इन दोनों को बच्चों ऐड करोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट विल यू गेट? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 2i इज इक्वल टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वॉज कॉमन, बच गया कितना? पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स दिस, योर क्वेश्चन बिकम्स 2i इज इक्वल टू दिस, राइट? इन दिस पुट cos x इज इक्वल टू t, cos x को t पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा dt, माइनस साइन एक्स बिकम्स dt। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। कैसे? यहां पे डाउट, दिस कन्वर्टेड टू दिस, राइट, यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। कैसे? लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखना, द लिमिट्स विल गेट चेंज्ड, राइट? The lower limit was 0. This is x1 and this is your x2. यहां पे लिमिट्स किसकी है बच्चों? Now the limits are of t. This is like your t1 and this is like your t2, right? Cos x is equal to t. So but x1 कितना है? x1 जब 0 है implies t1 कितना हो जाएगा? t1 is cos 0. cos 0 बच्चों कितना होता है? 1. So lower limit is 1. What is the upper limit? x2. When x2 is कितना? Upper limit is pi. तो t2 कितना हो जाएगा? Upper limit in the case of t, cos of pi, that is -1. So upper limit is -1. समझ में आया? That is how the limits changes after the substitution. So here we are doing substitution. कूल, बस सॉल्व कर लो इसके आगे। तो क्या हो गया? ये तो फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर इज tan इनवर्स टी, tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाई 4। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2। बट पाई स्क्वायर बाई 2 क्या आ रहा है? 2i इज पाई स्क्वायर बाई 2, बट द क्वेश्चन वॉज i कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। 2i इज पाई स्क्वायर बाय 2, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। क्लियर? वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। और एग्जांपल करते हैं, लेट्स डू दिस बच्चों। JEE 2005, आई होप यू गॉट द लास्ट वन। मैंने बहुत 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 स्लोली कराया है। यस और नो? द प्रीवियस वन? हाँ, गुड। देखो इसको, 0 to 1 8 log 1 plus x upon 1 plus x square dx। थोड़ा सा ट्रिकी है, स्लाइटली ट्रिकी। JEE 2005 आप समझ सकते हो, JEE मेन से स्लाइटली ऊपर, बट प्रॉब्लम बहुत सिंपल आती है इस चैप्टर से। प्रॉब्लम्स आर एनीवे सिंपल फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज अ लड्डू चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स नाइसली, इट इज द सिंपलेस्ट टॉपिक। पक्का गारंटीड क्वेश्चन सॉल्व होता है, गारंटीड। 0 to 1 log 1 plus x. I can actually simplify this question. Hint is this. You can actually simplify this question. Think carefully. One substitution can help you simplify this question. Whenever you see 1 plus x square in the denominator, you can put x is equal to what? X is equal to tan. Yes. उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई सेड दिस इज स्लाइटली ट्रिकी, बट करके देखते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? ट्राई विद दिस। लेट अस बिगिन विथ राइटिंग x इज इक्वल टू tan t। क्या होगा उससे? करके देखें। dx बच्चों कितना हो जाएगा? tan का कितना होता है डिफरेंशिएशन? सीकेंड स्क्वायर t dt, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। क्या किया मैंने? सॉरी, अपोजिट साइड। सीकेंड स्क्वायर टी को मैं इधर ले जाऊं। सीकेंड स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूं? dx इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर t
dt, बट tan t कितना लिया था मैंने, x. Can I also write this as dx is equal to 1 plus x square dt? एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि dx अपॉन 1 plus x स्क्वायर पूरा गया. ये लो, समझ में आया? dx अपॉन 1 plus x स्क्वायर, ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, dt. फिर से देखो, x को लिया tan t. मैंने हमेशा फिर से बोला है, जब भी डिनोमिनेटर में 1 plus x स्क्वायर होता है, ठीक है, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है, देन x इज इक्वल टू a tan t या a tan थीटा यूजुअली हेल्प्स. सो दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, क्योंकि अदरवाइज एक प्रॉब्लम मुझे बहुत इन द फॉर्मेट इट लुक्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू मी, सो आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट, राइट? सो x को tan t dx secant square t, but secant square is 1 plus tan square, but tan was x, so 1 plus x square नीचे ले गया, dx upon 1 plus x square बन गया बच्चों dt. So this problem now converts into with this substitution. अभी तक मैं किंग्स रूल पे नहीं आया बच्चों, आई एम स्टिल ओनली सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम. सो क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ठीक है, 8 log 1 plus tan t dt, राइट? बट अंडर द लिमिट्स, ये कितना हो जाएगा, लिमिट्स किसकी है बच्चों, x की लिमिट है ये. व्हेन x इज 0 तो tan कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा. व्हेन x इज 0 तो t कितना हो जाएगा, tan 0 इज 0. व्हेन x इज 1 सो tan pi by 4 इज 1, तो ये कितना हो जाएगा. सो योर प्रॉब्लम कन्वर्ट्स इनटू दिस. समझ में आया? दिस इज योर प्रॉब्लम. समझ में आया क्या हुआ? व्हेन x, जब x है 0, ये लिमिट्स किसकी है बच्चों, x की है. व्हेन x इज 0 तो t कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज tan 0 इज 0. व्हेन x इज 1 तो t को क्या होना पड़ेगा 1 देने के लिए, t को होना पड़ेगा बच्चों pi by 4. 10 pi by 4 is 1, so t कितना हो जाएगा, pi by 4. Now you can apply King's property here. Try applying King's property here. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? Can I move ahead? देखो सेम थिंग. तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये t की जगह थीटा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, एक ही बात है. सो i इज इक्वल टू 0 से pi by 4 8 log 1 plus tan t dt या tan थीटा d थीटा, वो जो भी आपको वेरिएबल लेना है. यहां तक आ गया. नाउ कैन आई अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी हियर? लगाए क्या, ट्राई करते हैं. व्हेन आई अप्लाई द किंग्स प्रॉपर्टी, सो दिस इज माय ओरिजिनल क्वेश्चन i, दिस इज माय ओरिजिनल क्वेश्चन i. अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी, I will say 0 से लेके pi by 4. बच्चों what does the property says? The property says wherever, so this is my f of x, this is my f of x या f of theta जो भी बोल लो, right? अगर मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूं थीटा की जगह a plus b minus theta, the integration will not change. So basically मैं क्या कर रहा हूं, जहां जहां मुझे थीटा दिख रहा है I am replacing that by a plus b, that is 0 plus pi by 4 minus theta. Integration will not change, it will still remain I. तो कितना हो जाएगा, 8 log 1 plus tan pi by 4 minus theta d theta. क्या किया, ओरिजिनल इंटीग्रेशन आफ्टर अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी, जहां जहां थीटा था उसको रिप्लेस कर दो किससे, a plus b minus theta से. इंटीग्रेशन विल नॉट change. After that what will you do, add, standard approach. फिर बच्चों क्या करते हैं, ऐड करते हैं, करो ऐड. 2i is equal to 0 से pi by 4 तो एज इट इज रहेगा, 0 से लेके pi by 4, 8 कॉमन. अगर ये लिखा था log a, इन शॉर्ट इट वॉज रिटन log ऑफ a, मतलब ये पूरी चीज अगर a है तो यहां पे क्या लिखा है, मान लो दिस इज log ऑफ b, तो बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये लिखा हुआ है. दोनों को ऐड करेंगे तो, बट व्हाट इज log a log b, log a प्लस log b, इट इज सेम एज सेइंग log ऑफ a इंटू b. मतलब 1 प्लस tan थीटा
एंड 1 + tan π/4 थीटा का मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको याद है तो ये एक लाइन का आंसर है। देखो मैं दिखाता हूं सॉल्व करके। किसी को याद है? सिंपली 2। किसी को याद है कि याद नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल प्रॉपर्टी थी ये, मैं करके दिखा देता हूं, नहीं तो डोंट वरी, लेट मी डू इट फॉर यू। क्या है देखना ध्यान से। क्या किया अपन ने? ओरिजिनल आई ये था, ओरिजिनल आई वाज दिस इज द आई which we created after applying King's property. King's rule अप्लाई किया अपन ने, तो क्या हो गया? जहां जहां लिखा था थीटा वो बन गया, किससे रिप्लेस हो गया? a + b - थीटा से, π/4 - थीटा। देन आई एडेड द 2। व्हेन आई एडेड द 2 तो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखना। अगर ये था a, इफ दिस वाज a and if this was b, ठीक है, then log a plus log b is log of a into b। बेसिकली मेरे को चाहिए log of a into b, right? Now let's see what is a into b. What is a into b? This is a into this is b। 1 + tan theta इंटू 1 + tan π/4 - थीटा बच्चों होता है 2 इफ a + b इज π/4। याद है? इफ a + b इज π/4 देन 1 + tan a इंटू 1 + tan b बच्चों होता है 2। यहां पे a कितना है आपका? सॉरी, है ना? अगर इसको बोल रहा हूं 1 + tan a और ये 1 + tan b, तो a + b बच्चों कितना आपका? a + b इट इज π/4, देन इट इज गोइंग टू बी 2। कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको? वो बहुत सिंपल है, मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं। 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan π/4 - थीटा, यही कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट? इसको एक्सपैंड करके लिख लो, इसको एक्सपैंड करके लिख लो। दिस विल बिकम, ये क्या है? tan a - tan थीटा अपॉन 1 + tan a tan थीटा, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, which will give you 2 upon 1 + tan theta. Now 2 upon 1 + tan theta multiplied by 1 + tan theta. So this multiplied by this will give you 2, right? So when I add these I plus I, 8 कॉमन आ जाएगा, log 1 + tan a plus log 1 + tan b, but log a plus log b is equal to log a into b. So log of this into this, log of this into this is actually saying log of 2. So actually you simply get what? 8 log 2. That's it. And you can solve it. Your answer will be pi log 2. समझ में आया? So this is your JEE problem. This is like your JEE Mains level plus, like JEE Advanced. ठीक है? क्लियर है ये सबको? इसको रिवाइज करना, I'm sure lot of students will have some doubt here. Do revise. Now, before I go ahead, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बता देता हूं बच्चों आपको। अगर कभी आपको ये फॉर्मेट दिख जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना आपको, एंड आई विल एंड माय क्लास इन 5 minutes आफ्टर दिस। ये रट लो, ये शॉर्टकट है, बहुत सिंपल। whenever you have a question where you have to integrate between a to b, fx upon f of x plus f of a plus b minus x, तो सॉल्व करके देखो। I is equal to इंटीग्रल a to b f of x upon f of x plus f of a plus b minus x। ठीक है? राइट इट अगेन यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, राइट इट अगेन यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी। वापिस से लिखूं तो क्या हो जाएगा? I is equal to, now writing using King's property, replacing x by a plus b minus x। जहां जहां दिख रहा है x रिप्लेस कर दो किससे बच्चों? f of a plus b minus x अपॉन x की जगह बच्चों कितना आ जाएगा? f of a plus b minus x प्लस
अगर आप यहां पे x की जगह रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स, बचेगा x, करके देख लो। तो ये था i और ये भी था i यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी। व्हेन आई ऐड द टू बच्चों क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज द सेम, व्हेन यू ऐड द न्यूमरेटर दिस प्लस दिस अपॉन डिनोमिनेटर विल गिव यू नथिंग बट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 dx, राइट। इसको करो कितना आ जाएगा, दिस इज b माइनस ए, i बच्चों कितना हो जाएगा, b माइनस ए बाई टू, आई विल बी b माइनस ए बाय टू, डायरेक्टली दिमाग लगाना ही नहीं। तो जब भी क्वेश्चन आपको दिख जाए किस फॉर्मेट में, न्यूमरेटर में एफ एक्स है, डिनोमिनेटर में एफ एक्स है और एक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्मेट में है, आंसर इज वर्बल सिंपली b माइनस ए बाई टू। एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ जेई। करके देखें, शुड वी सी, देखते देखना, नोट कर लिया इसको, हैव यू नोटेड इट डाउन? देखते कैसे अप्लाई होता है, लेट्स सी हाउ इट इज अप्लाइड इन द प्रॉब्लम्स। जेई 2006, आई वांट द आंसर डायरेक्टली, आई वांट द आंसर वर्बली, शॉर्टकट, ध्यान से पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ो इसको। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज ए प्लस बी, a प्लस बी इज 9, राइट। तो अब ध्यान से देख रहे हो फॉर्मेट क्या है, देखना ये है एफ ऑफ एक्स, तो ये भी क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज दिस, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स से, इज इट नॉट रिटन a प्लस बी माइनस एक्स? अगर एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ रिप्लेस x बाय 3 प्लस 6 9 माइनस एक्स। अरे ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, सॉल्व ही नहीं करना, इसका आंसर डायरेक्टली बच्चों कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी माइनस ए, खत्म प्रॉब्लम। जेई की प्रॉब्लम, आंसर इज 3/2। यस कि नो, समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, राइट। सिंपली सी द फॉर्मेट, एफ ऑफ एक्स, इसको देखो, अरे यार ये तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा है भाई। अगर एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है तो अगर एक्स को रिप्लेस कर दूं 6 प्लस 3 6 प्लस 3 9 माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा, हेंस इट इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। फॉर्मेट इज एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। और ये तो बताया था कि जब भी ये फॉर्मेट होती है तो आंसर डायरेक्टली होता है हाफ ऑफ बी माइनस ए, दैट इज 3/2, खत्म। एक और दिखाऊं, सो दिस इज जेई 2006। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्टली 3/2। ये बताओ, दिस इज अगेन जेई प्रीवियस ईयर, आई वांट द आंसर, क्विक क्विक क्विक, दिस इज अगेन योर आईआईटी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। क्या बाय बाय 4, क्यों भैया, ये क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, तो ये भी क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी इज π/2। सो इफ यू रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या हो जाता है, ये कितना हो जाता है, इफ यू रिप्लेस एक्स बाय π/2 माइनस एक्स, तो cot π/2 माइनस एक्स बच्चों कितना होता है, 10x। तो ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, दिस इज एफ ऑफ a प्लस बी दैट इज π/2 माइनस एक्स। सो फॉर्मेट क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स है कॉट एक्स, रूट ऑफ कॉट एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी दैट इज π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ π/2 माइनस एक्स दैट इज अंडर रूट ऑफ 10x। अरे क्यों सॉल्व करूं, आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बी माइनस ए दैट इज π/2 माइनस 0, द आंसर इज π/4, खत्म लड्डू। और ऐसे मैं आपको खूब सारे प्रॉब्लम कराऊंगा, एटलीस्ट एवरी अदर ईयर वन प्रॉब्लम इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस। क्लियर बच्चों, समझ में आया, ठीक है। चलो, आई विल एंड माई क्लास नाउ, ठीक है, आई विल एंड माई क्लास टुडे ऑन दिस एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस इन माई नेक्स्ट क्लास।
So बच्चों, what are we going to do in my next class? This thing. Next class में quick revision of properties 1. ठीक है, I'll take few more problems of properties 1. We'll do the properties 2 after that. Even odd functions, periodic functions. ठीक है, फिर हम करेंगे Newton-Leibniz and summation of the integration. Both are important for JEE. And then shortcut tricks and JEE problems in my last class. That is the most important class. ठीक है, and on that note बच्चों, I am going to end my class. If you liked it, then press on the like button and do share with your friends who you think can benefit, and do subscribe if you have not. And as I always do बच्चों, y equal to x square on your faces always is what we all want, especially I do want. ठीक है, स्माइल करते रहो, खुश रहो. डेफिनेट इंटीग्रेशन सुपर लड्डू है. स्माइल करो, ऐसे हो जाएगा. खट 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 खट. फंडू शॉर्टकट लगेंगे इस चैप्टर के अंदर. एंड इफ यू कैन विजुअलाइज ग्राफिकली, खत्म है चैप्टर ये. ठीक है, चलो, सी यू अराउंड इन माय नेक्स्ट क्लासेस. नेक्स्ट क्लास इज ऑन, आज क्या, वेडनेसडे, फ्राइडे. सी यू ऑन फ्राइडे 6 PM to learn new properties. Bye, see you.